All right, ji, assalamu alaikum, guys. This is once again Bilal Nazar Siftain from yet another exciting episode of the learning series जो हमने start की थी पिछले एक महीने पहले, and today is our fourth episode, and I am so happy today actually, and I am so proud today because कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आते हैं कि जो बेसिकली एक इम्पैक्ट क्रिएट करके जाते हैं और बहुत ज़्यादा बल्कि आपकी लाइफ में चेंज क्रिएट करते हैं, एंड आई एम सो फीलिंग प्राउड टुडे के आज जो मेरी गेस्ट हैं वो शी इज वन ऑफ दैट के जिन्होंने जो है बहुत सारी लाइफ, सिर्फ मेरी लाइफ नहीं लेकिन बहुत सारी लाइफ्स के अंदर जो है यंगस्टर्स की, यूथ, स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री, इंटरनेशनल क्रॉसिंग बॉर्डर्स, उन्होंने जो है लाइफ्स को चेंज किया है, लोगों को ट्रेन किया है अपनी टीचिंग स्किल्स से, अपनी ट्रेनिंग स्किल्स से। तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस विद हर. So let me introduce you Ms. Wahida Maisar. She is the director of ZEBIST, ZEBTech Institute of Technical and Vocational Education, and that is the largest TVET provider in Sindh, Pakistan. ZEBTech seeks to meet the holistic needs of youth by increasing their knowledge, assets, and skill through access to high quality learning, including technology training and workforce development. Ms. Wahida Maisar holds master's degree in computer science and public administration, and among her longest list of accolades and achievements, the most recent is the Australian Awards. So without further ado, let me introduce and welcome Ms. Wahida Maisar. All right, ji. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. Thank you, Bilal, for such a lengthy introduction. I think only Wahida Maisar was enough, and I don't think so. Okay, I have done, much job in the education sector. Still long way to go. There is so much to do. No, you're right. But I think कि जिस तरह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में भी कहा कि अभी जो शायद मैंने आपका इंट्रो कराया है, ये कुछ वो एक्कोलेट्स हैं जो शायद मैंने बताए, बिकॉज I have seen you coming from a long way, since last 15-20 years, and you have changed. जिस तरह मैंने बात की कि you have changed many lives. एक स्टूडेंट को वही वाली बात है ना कि जब एक बड़ी जबरदस्त चीज मैं अक्सर पढ़ता आया हूँ कि व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी तो टीचर अपीयर्स. तो आज की हमारी कोशिश भी बस यही थी कि हम सिर्फ कोशिश करें, और आपने टाइम दिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. सो मैम, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ऑब्वियसली हमारे पास ऑडियंस है एंड वी हैव ऑडियंस अक्रॉस कंट्री, इंटरनेशनल ही भी लोग हैं, लेकिन हम इसको ऑब्वियसली बाइलिंगुअल रखेंगे बिकॉज हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान से ही है, नवाबशाह से है, खास तौर पे इंटीरियर सिंध से है, पंजाब से है, केपी के से है. सो वी हैव अक्रॉस नेशन वाइड पीपल. मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि व्हाट इज ZEBTech, बिकॉज लोगों को, जब मैंने ऑब्वियसली अनाउंस भी ये किया था, आपकी प्रोफाइल अनाउंस की थी और इस शो के बारे में अनाउंस किया था, तो लोगों ने यही पूछा था कि व्हाट इज ZEBTech, बिकॉज दे नो अबाउट ZEBIST बट दे डोंट नो अबाउट ZEBTech. उनको शायद इतना आइडिया नहीं है. और फिर एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछूंगा कि जब मेरी ZEBIST के साथ एफिलिएशन हुई बैक इन a decade before, तो उस टाइम ZEBIST JSTC एक होता था, that is Job Skills Training Center. So what is the difference between ZEBTech and JSTC? Yeah, very good question, and thank you very much. You have given me this opportunity to clarify and make people understand more. Actually, under the umbrella of ZEBIST, ZEBTech Directorate is established to provide technical and vocational education. Before that, ZEBTech was the name of Job Skill Training Center. Job Skill Training Center in 2014 was renamed further with ZEBTech, because in Job Skill Training Center we were limited with the computing, communication as well as management skills. That's it. Right. And it was only for the youngster like you and college students, graduates, postgraduates, pre-service, in-service. Later on, we realized in Pakistan, where youth bulge is unemployed and they do not have access to reach to higher education up to university level. And the majority of the students of rural Pakistan, not only rural Sindh, but rural Pakistan, they are out of schools. So what is their future? For them, we designed program under the umbrella of ZEBTech, which is again the entity of ZEBIST, to provide them technical and vocational education. Maybe they are drop out after matric, maybe they are drop out after college, or they have done just semi, secondary education, or they are drop out from the primary. And for them, we introduced very first time welding and fabrication, electrician, AC refrigeration, mobile repairing, generator repairing,
solar panel installation and maintenance. You see, these are the things which are really are needed in Pakistan, because Pakistan is not that much developed country where the youth may be given opportunities for the jobs, Exactly. 9 to 5 job. Yeah. We are trying to promote entrepreneurship. The youth would be the employer rather than employee, because if you are a person who is holding business, maybe it's a small scale enterprise, it is not Yeah. necessary to have huge factory. ये जरूरी नहीं है, मैं इसको थोड़ा इस तरह डिफाइन करना चाहूंगी कि ज़ेपटेक बनाने का मकसद ये था कि यूथ को एड्रेस कैसे किया जाए। जब जॉब स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था तो उस वक्त हमारा कंसेप्ट ये था कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको शहरों में जॉब्स नहीं मिलती, खास करके जब रूरल एरिया का कोई नौजवान लड़का या लड़की हाईली क्वालिफाइड बट ड्यू टू देयर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटिंग स्किल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द 2000, the new era, the new millennium when came. Then our leadership, Sheikh Benazir Bhutto Sahiba was our founding chancellor of Zabest. She decided that at the district headquarter level, there must be Zabest Job Skill Training Center to provide the required or needed skills to the youth so that they may come to the cities and bigger cities like Lahore, Karachi, Islamabad, and they can have their job. When we talk to factory, owners and the international organization, they said the problem is with the youth. They are very good in their skills, but they do not have communication skills, appearance skills, interview skills, management skills, accounting skills. Then we started short courses under the umbrella of Job Skill Training Center. As you were the part of Job Skill Training Center, I remember. And it was very first batch when you started. People were surprised. How come school students are your part? I still remember when I started my career. Career was started from University of Sindh, but later on I became principal of Job Skill Training Center Nawabshah. Yes, exactly. Mostly the parents who were doctors or the businessmen or the even teachers, they said you don't have any program for our kids because in summer they are doing nothing and everybody is not so much eager to go northern areas and have family trip. Even after family trip, after 1 week or 2 weeks, they have ample time. So they requested us, please you must design some program for the school kids. So very first time when we during summer vacations and winter vacations, for the communication skills with English as well as use of the IT at that time. Exactly. I remember, I think Zabest JSTC introduced DIT and DCBM sort of programs, communication skills and business management programs and informational technology programs. All right. Exactly. So it is now transformed into Zeptec. Yes. In 2014, the board of trustees Zabest decided to expand the canvas of the Job Skill Training Center. Now, Job Skill Training Center is the one part of Zeptec. Zeptec is the larger umbrella, larger umbrella where your technical and vocational education for all means we have solution for all. Whether you are drop out from under the metric or after the college, or even if you are graduate but doing nothing, we just give you some new courses with the new wrapping, new glucose, and you will be fit for the market. Because you don't have time, you don't have 16 years again to go to other education, right? You're right, exactly. And I think because obviously I was the part of Zabest JSTC and मैंने उससे education ली, I have done a few of the courses from there. मैं ये समझता हूँ कि उस era में back in 2004, 2005 or 2003, शायद Zabest JSTC was the only institution back in Nawabshah or any other part of the country कि जिसने इस तरह की skills के ऊपर काम करना start किया, I think, because obviously conventional, ma'am, I think conventional education तो offer हो रही थी पाकिस्तान में, लेकिन going unconventional or giving skills to the youth, I think there was the very premier and first choice by Zabest. तो Zabest ही वो institute था जिसने introduce कराया था. और आई थिंक अभी भी इवन पायनियर इस चीज में है कि जिस तरह के कोर्सेज आपने बताया कि स्किल डेवलपमेंट पे बात हो रही है, तो ज़ेबिस्ट उसके अंदर जो है वो है. चले मैं मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ज़ेबिस्ट के बारे में तो आपने बता दिया. पीपल ऑल्सो वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ, जो आपको जानते हैं, आपके स्टूडेंट्स रहे. मतलब मैंने पूरी एक पिछले 10 साल में
एक स्टूडेंट्स की पूरी एक जनरेशन देखी है, स्टूडेंट जिसमें हम भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स के पूरे लोग देखें जो आपको जानते भी हैं, जिनकी लाइफ्स को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो 2004 से लेके या 2000 से लेके 2020 तक में व्हाट इज वहीदा महेसर, क्या आपकी कंट्रीब्यूशन, तो खैर उसमें कोई शक नहीं है कि कंट्रीब्यूशन क्या रही है, लेकिन आप अपने आप को किस तरह डिफाइन करेंगे बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग समवन हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी? ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है आई थिंक, बिकॉज बट मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में। प्रोफाइल तो मैंने लोगों को बता ही दी है, बट आई वुड लाइक टू मोर नो फ्रॉम योरसेल्फ अबाउट दिस। बिलाल, आप ने ट्रिकी सवाल किया है, और सच्ची बात तो ये है, सबको बता दें कि आपने मुझसे पहले कोई कम्युनिकेशन भी नहीं की बिफोर दिस इंटरव्यू। ऑल क्वेश्चंस आर spontaneous very random, yeah, and very random, you see. And believe me, I just finished my budget meeting and I was worried कि मुझे 3 बजे हर हाल में मीटिंग रूम से उठ के अपने ऑफिस में आके बैठना है। Thank you so much for I'm in my office. Yeah. You can see, my background. I'm in my office. बिलाल, ये कोई आसान नहीं है अपने आप को डिफाइन करना। वहीदा महेसर is a teacher. I would like to introduce myself because my identification is a trainer, is a teacher. Yes, for some people I mentor maybe, and even still I am in need of mentorship, and there are several people who are my mentors still, and definitely I'll be in the need of it. आप लोग समझते हैं क्योंकि उस वक्त आप छोटे थे, और मैं समझती हूँ कि आप लोगों की मेंटरशिप हो सकती थी उस वक्त। अभी इंटरनेट नया नया आया था, पाकिस्तान में इन हो चुका था, राइट? Exactly, और आप लोग, मुझे अभी भी याद है कि 14 अगस्त का वो एक इवेंट किया था जिसमें अमार और आप और यासिर सुरैयो ने एक सॉन्ग भी गाया था, और फिर वो कंप्यूटर से आप लोगों ने कुछ स्किल्स ली थी, बीट्स वगैरह। मतलब वेरी फर्स्ट टाइम था, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता था, मुझे सिर्फ एक राह दिखानी होती थी स्टूडेंट्स को। और उस वक्त के भी स्टूडेंट्स और अभी के भी इतने वाइब्रेंट है, मैं समझती हूँ कि वो अपने रास्ते पर खुद समझना शुरू कर देते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, आपको सिर्फ राह दिखानी होती है। वहीदा महेसर ने, जैसे आपने पहले बताया कि आई हैव डन डबल मास्टर्स एंड एमफिल इज अबाउट टू फिनिश। Maybe in the future I do PhD in technical and vocational education, क्योंकि पाकिस्तान में इस पे कोई किसी ने काम नहीं किया है, तो आई एम प्लानिंग टू डू सो। सफर इस तरह मेरा रहा कि I started my career as a research associate from University of Sindh, Jamshoro, from Public Administration Department, and I taught one semester to MIS, Management Information Systems, उन लोगों को जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थे। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो थे, लेकिन स्पेशलाइजेशन फाइनल ईयर में आपको पता है कोई फाइनेंस में जाता है, कोई HR में, कोई मार्केटिंग में। तो एक ग्रुप था जो MIS करना चाह रहा था, तो आई वाज देयर टीचर। और वो हमारे एज में फर्क सिर्फ 6 मंथ का था, बिकॉज आई जस्ट फिनिश्ड माय मास्टर्स एंड आई वाज अपॉइंटेड एज अ रिसर्च एसोसिएट। आई रियलाइज लेटर ऑन कि द type of person I am, I cannot work with the government sector. So just I finished my one semester and I left the University of Sindh and I joined Zabest. Fortunately, I had opportunity to be a faculty member of Zabest campus Ladkana, and I joined as a computer faculty. I worked there only 8 months, and then I was promoted as a principal of Zabest Job Skill Training Center Nawab Shah in 2002. So, and after that, I never looked back. And then projects, completion of the new projects, I just moved on. And in 2012, I came to Karachi as a manager of Directorate of Job Skill Training Center. And within 2 years, I just got renamed Job Skill Training Center with the Zaptec, and I became first and pioneer director of Zaptec under the umbrella of Zaptec. Brilliant, mashallah, brilliant. What an amazing journey. We have 7 chapters. We have 7 chapters. Hyderabad, Ladkana, Nawab Shah, Khairpur, Tadumukar Khan, Gharo means Thatta, and 7. Gharo is a state-of-art institution. If you time you. आप इस चीज से बहुत वो होंगी खुश क्या यहाँ पे मेजॉरिटी जो हमें ज्वाइन किया हुआ है इस वीडियो चैट में, वो आपके स्टूडेंट्स ने किया है, और उनके कमेंट्स आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली मेंशनिंग कि वो कहाँ से, मैं स्क्रीन के ऊपर उसे डिस्प्ले भी करूंगा। तो बिल्कुल मतलब आई एम सो हैप्पी कि हमने इस पूरी कम्युनिटी के जो है ज़ेबिस्ट कम्युनिटी को भी इस वीडियो में जो है एक साथ हमने जमा किया है। ठीक है मैम, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम रिक्वायर्ड अ ट्रांसफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन, एनी टाइप ऑफ? Oh yes, Bilal, just one thing.
through which you can understand the situation of Pakistan education. If you are talking about whole education, in government sector, 89% budget of the education is only for salaries. Oh. Now remaining 11 budget is for development. Development of what? Both the hardcore and the soft skills. The Soft soft skills skills, means yes. your trainings. Oh Now my in the current salaries, 89% of the total budget goes for the salaries only. What about your development? The Or the infrastructure, infrastructure, the yeah, exactly. teachers training, and the nurturing of the students. When the situation of Pakistan education is this, then definitely we have to come forward. Being a Pakistani, being a part of the Pakistan, of course, this is the job of government. I cannot totally change the system of Pakistan, but whatever we can contribute under the umbrella of my trust, Zappes Trust, we are doing so. As far as reforms are concerned, you see, in the developed countries, the major budget goes for education and health. Yeah. But unfortunately, in Pakistan, when we are now facing pandemic situation of coronavirus, and we are facing lack of ventilators. I mean, it is not in thousands. Even our ventilators are in hundreds. While your population is in the millions, 200 million is not, a less number. But thing is that there is a dire need, and as your show time is very minimum, I cannot completely give all the Yes, facts. exactly. I totally understand. I totally understand about it. There is a dire need to reform this situation. Otherwise, the salaries you are providing or giving to the teachers, current teachers, how many of them are really trained teachers, or willing teachers, or they are really capable enough to impart quality education? Then another question. We are still focusing how to make attendance, regular, how to ensure attendance. And the biggest challenge we are facing in your regular or conventional education is the dropout. Exactly. The Pakistani population is not urban population. Your 70+ population is rural population, and the education of rural area is drastically down. My whole education is from government sector. I was a student of Mira School, Hirabad, Hyderabad. Later on, it became a pilot school, government school. Zubeda College, government college. University of Sindh, public university. Public university. But 20 years ago, there was some, the standard and quality of education. Yes, exactly. But now you can't rely. So how would you elaborate this? That where is the gap actually? किस जगह पे वो basically difference आ रहा है मैम कि हम उस एजुकेशन स्टैंडर्ड पे पहुंच नहीं पा रहे हैं? मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने कहा कि रूरल की एजुकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऑब्वियसली आई टोटली अंडरस्टैंड बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम नवाबशाह, वो तो चले खैर फिर भी एक सेमी अर्बन टाउन है, लेकिन अगर मैं और फर्दर रूरल एरियाज में चला जाऊं तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमने एजुकेट करना है अपने बच्चों को, या फिर हमने कोई हायर एजुकेशन का, लोगों का वो विजन नहीं है. तो उस गैप को किस तरह खत्म किया जाए? मतलब आई थिंक कि ज़ेबिस इंस्टीट्यूट्स लाइक ज़ेबिस आर डूइंग ग्रेट जॉब, लेकिन एक इंस्टीट्यूट इतना आपको पता है एरिया कवर नहीं कर सकता. सो हमें अगर जब तक हम ऑब्वियसली गवर्नमेंट लेवल पे आके ये चीज हम रिफॉर्म नहीं करेंगे तो जब तक नहीं हो सकेगा. तो व्हाट डू यू थिंक वेयर इज द गैप? गैप जो है हमारे पॉलिसीज में है, हमारी विलिंगनेस में है. देखिए, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि द वर्क ऑफ स्टेट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कैन नॉट डू. यू कैन जस्ट कंट्रीब्यूट टू सम एक्सटेंट, दैट्स इट. और वो भी जैसे अभी बात की, अगर आई एम इन अघारो, ज़ेप्टेक इज इन अघारो और हैदराबाद आर इन लाड़काना नवाबशाह, they will address certain population. Simple. Point something. You're right. You're right. I agree with it. प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को प्रमोट किया जाए. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज, जैसे अभी हेल्थ सेक्टर में हो रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर स्पेशली टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में इफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी तो क्या होगा कि ट्रेनिंग्स होंगी. मैं अभी इसलिए उर्दू में बोलना चाह रही हूँ कि ताकि लोग समझें, मेरी ऑडियंस. बिल्कुल एग्जैक्टली. मैं भूल गई, आपने पहले कह दिया था बायलिंगुअल होना चाहिए. आई एम सॉरी फॉर दैट. नो इट्स ऑलराइट. ओके, तो पॉलिसीज हमें ठीक करनी पड़ेंगी, और हमारे जो वो टीचर्स जो ट्रेंड नहीं है या घोस्ट टीचर्स है, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए बिकॉज आई डू नॉट वांट टू मेक देम एनॉयड. तो
पॉलिसीज थोड़ी हमें हार्ड एंड फास्ट करनी पड़ेगी, जिनको गोल्डन हैंडशेक देना है वो दे दें, नया ब्लड लेके आए, नए ट्रेनर्स लेके आए, और अभी जो जदीद हमारे पास टूल्स हैं आईटी के, उनको आप इंट्रोड्यूस करें। देखें, अगर अफ्रीका के किसी पसमानदा मुल्क में आप टेब सिस्टम चला सकते हैं, टेबलेट मिल सकता है, तो व्हाट्स प्रॉब्लम? अभी आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से निकल के वर्चुअल पे आ सकते हैं ना। तो इफ यू डू नॉट हैव मनी, योर बजट इज लिमिटेड, बट you are if intellectual and your sense is working, there are the solutions. क्यों नहीं है solution? And every development sector is ready to support the government, but thing is that who is supporting, who is the decision maker of the policies? They have to be little sincere with the nation who are really poor. अभी अब शहरों की बात करेंगे कि आपके पास तो बीकन हाउस सिस्टम है, आपके पास OA लेवल हो गया, आपके पास ग्रामर स्कूल है, लेकिन वो क्वांटिटी बहुत कम है। हमें जो जाना पड़ेगा वो मासेस पे जाना पड़ेगा। मेजॉरिटी जो हमारी है, जिसे अभी बात कर रही हूँ, वो हमारी पुअर है, और उनको फिर आप ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स में भले कंसाइज ना करें, लेकिन उनको आप वो गैजेट्स दे दें, वो डिवाइसेस दे दें, और इंटरनेट थोड़ी फ्री कर दें, तो दे कैन लर्न। और मेरा मैम आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ आगे जाके भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही था, लेकिन मैं उसको पहले ले आता हूँ। दिस इज अबाउट कि हम 1 यूनिट बेसिकली एजुकेशनल सिस्टम किस तरह डेवलप कर सकते हैं। आपकी बात क्योंकि इससे बहुत कोरिलेट कर रही है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसके साथ कंबाइन किया है कि हाउ कैन अ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन कैन कोरिलेट। वो एक स्टैंडर्ड पे, एक एजुकेशनल सिस्टम पे आना, जो कि मैं समझता हूँ कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत दूर नजर आता है वो। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा मैम, इफ आई थिंक यू नो अबाउट इट कि इंटीरियर सिंध में, और खासतौर पे मैं अभी जब रिसेंटली नवाबशाह गया था, तो मैंने वहाँ पे ये चीज देखी कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स खुले हैं। डिस्ट्रिक्ट बेनजीर स्कूल आई थिंक उसका नाम है, वो खुला है। आई थिंक दैट इज ऑफरिंग समथिंग स्टैंडर्ड को, जो हम जहाँ पे हम चाहते हैं कि बच्चा वहाँ पे पढ़े, समथिंग ब्रिलियंट स्टैंडर्ड। तो इस तरह हम स्टेट के पास, आपको पता है कि ऑब्वियसली इस तरह की स्ट्रेंथ है कि वो इस लेवल पे जाके काम कर सकते हैं। तो जब ये 2 स्कूल इस तरह खुले हैं, तो हम इस वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं? ओवर टू यू। सही आपने एक पॉइंट उठाया कि 1 यूनिट एजुकेशन सिस्टम कैसे करें। उसमें मैं थोड़ी अर्ज करूं कि सिंस द फेडरल गवर्नमेंट, when they took over, new government took over the charge, they announced that we are going to make a same system for education, जहाँ पे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इसको खत्म करेंगे। आई थिंक 2 years आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, लेकिन अभी तक उस पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जैसे आपने पहले ही कहा कि इट इज नॉट सो इजी, नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। बिल्कुल। अब आपने उस पर एग्जाम्पल एक दिया है कि जैसे बेनजीराबाद में, नवाबशाह में ये स्कूल, हम वो भी जेबेस्ट ही लुक आफ्टर कर रहा है। अभी आपको शायद इस बात का पता नहीं होगा, एक तो डिस्ट्रिक्ट में जेबेस्ट नहीं इस चीज को लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, वी आर नॉट चार्जिंग सिंगल पेनी। अब मसला ये आ रहा है कि उसमें भी कैपेसिटी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ नवाबशाह इज फॉर एग्जाम्पल 1 million, आई एम टॉकिंग अबाउट होल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट, तो आपके पास कैपेसिटी 3-4 स्कूल्स की कितनी है कि 3-4 हजार आप कैटर कर सकते हो ना। और आपके पास जो यंग लॉट आ रही है वो अराउंड 2-3 lakhs है। उसके लिए हमें कितने स्कूल्स चाहिए? लेकिन एक चीज प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने कम से कम अपने लेवल पे इस काम को स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली स्टार्ट किया है, और वो इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड सेम। वो आप बेस्ट से बेस्ट अगर प्राइवेट स्कूल है, जैसे आपके सिटी स्कूल हो गए, बीकन हाउस, तो आपको वही स्टैंडर्ड मिलेगा। जस्ट स्टार्ट, इट विल टेक टाइम until and unless we are not making education system same for all, whether poor or rich. Difference of poverty and richness will remain. अभी आपको अर्ज करूंगी, जैसे आपने सुना होगा शुरू में हम सुनते थे कि अच्छा ये कमिश्नर है, हाँ ये फला प्राइमरी स्कूल से पढ़ा था, अच्छा ये डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर का कंसेप्ट था ही नहीं, और जो आप गवर्नमेंट सेक्टर है वो सबको यकसा क्वालिटी देता था, and the trainers quality and the commitment and ownership of the community even, because at that time parents were much involved with the school. अब इसमें अभी भी आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर की इतनी तनख्वाह जाती है, तो जो पेरेंट्स टीचर्स का जो रिलेशनशिप है, आप देखें ना, पेरेंट्स भी तो ओन नहीं करते ना उस स्कूल को, लेकिन अब उनका मसला ये भी है कि वो अपने नान रिफ्के में ब्रेड एंड बटर के लिए इतने परेशान है, और उनको जब अवेयरनेस नहीं है तो वो क्या करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब कम्युनिटी, सेमी अर्बन की बात कर रही हूँ,
अगर स्कूल को ओन कर ले, अगर मैं पढ़ी हूँ फॉर एग्जाम्पल पायलट स्कूल हीराबाद हैदराबाद, अर्लियर मीरा स्कूल, मैं उसको ओन कर लूँ बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ ज़ेबेस्ट, 6 महीने में साल में मैं जाऊं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर दूं, और थोड़ा टीचर्स को अगर मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे आप हैं, आप नवाबशाह में जाते हैं, मुझे पता है बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन ये तादाद बहुत कम है। अगर हम ओन करना शुरू करें उन इदारों को, मेरे आप तो बहुत यंग है जाहिर है मुझसे, लेकिन जब मैं पब्लिक सेक्टर में पढ़ के आई हूँ तो वो पब्लिक सेक्टर को ओनरशिप मिलना शुरू हो जाएगी और चीजें ठीक होना शुरू होंगी, लेकिन अगेन विद द फोकस एंड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज स्टेट का काम कभी भी कोई एनजीओ नहीं कर सकती, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, वो सिर्फ कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो 100% वो स्टेट का ही पावर होता है, स्टेट ही कर सकता है। आपकी इस वाली बात से, और अभी पहले भी आपने ये चीज मेंशन की थी, आई थिंक कि जो मेजॉरिटी लर्निंग मुझे इस सेशन अब तक मिली है वो वाकई ये बहुत है, एंड आई टोटली एग्री विद दैट कि स्टेट इज इक्वल टू स्टेट इन द एंड। प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकता है जो कि स्टेट की एक होती है, एंड स्टेट कैन डू वंडर्स अगर वो चाहें तो, क्योंकि रीजन ये है कि स्टेट के पास बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं जो किया जा सकता है। ठीक है मैम, मुझे ये बताएं कि there is a gap or there is a difference between being educated and being aware। आप मतलब स्किल्स ट्रेनिंग पे जब हम बात करें, और हम मतलब आपका तो खैर 20 साल मैं समझता हूँ कि जो 2000 से आप बता रही हैं और आप अभी 2020 तक जो बता रही हैं, वो ये बहुत दफा ये चीज आई होगी कि जब बात किया होगा हमने एजुकेशन पे और अवेयरनेस के ऊपर, बट देयर इज अ डिफरेंस, आई नो वेरी वेल, बिकॉज मैंने भी नवाबशाह की यूथ के साथ काफी काम किया है, मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के साथ काफी काम किया है, डेवलपमेंट सेक्टर में भी कुछ काम किया है, तो मुझे आइडिया है कि एजुकेशन और अवेयरनेस में बड़ा डिफरेंस है। सो व्हाट इज हाउ वी कैन रिड्यूस द गैप, और किस तरह से हम बेसिकली जो है इस गैप को खत्म करके कुछ प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर सकते हैं? First of all, we have to understand the difference between education and being aware. You know, being educated and being aware. आपने लफ्ज सुना है तालीम एंड तरबियत? बिल्कुल, यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग आ गया था, ट्रेनिंग। अगर टीवेट की बात करेंगे, टीवेट में विदाउट ट्रेनिंग कुछ हो नहीं सकता। हम इसे कहते हैं CBTA, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि ईदर यू नो और यू डोंट नो, सिंपल। It's not a story of piece of paper. For example, in the Pakistan, we consider education as a piece of paper. Piece of paper means your certificate or degree. And your even experience says कि आप जब जाते हैं मुख्तलिफ सेमिनार्स के लिए, आपको पता होता है कि क्या हो रहा है, एग्जैक्टली। piece of paper is not for me education। उसको थोड़ा मैं और ऐसे आगे बढ़ाऊं कि हमने नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे जो टीवेट का बुनियाद ही इस चीज पे है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब होता है कि अगर आप सपोज मैंने आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी है, तो आपको या ड्राइविंग आती है नहीं आती, बीच में कुछ भी नहीं है, या आप एज HAVC या इलेक्ट्रिशियन मैं आपको कोई काम देती हूँ, या आप मुझे करके देंगे या नहीं करके देंगे, बीच में कुछ भी नहीं है। दिस इज द थिंग। ये थोड़ा मैंने ये अभी डिफरेंस बताया। बीइंग अवेयर, सीधी सी बात है, देखिए अगर हमारी अभी तक की अवेयरनेस ये है कि मुझे डिग्री चाहिए, कि मुझे फला जगह पे ऑफिसर बनना है, क्लर्क बनना है, व्हाटएवर, क्योंकि उनका कैनवास, उनकी सोच, उनका विजन ही इतना है, और विजन हमने अभी देना है, मोर देन स्काई इज द लिमिट। मेरे ही सामने अम्मार नवाबशाह का ही बच्चा था, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, और क्रिकेट लीग की बातें हो रही हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस को तरबियत दे रहा है। दिस इज रियली फॉर मी इट्स सरप्राइजिंग। नवाबशाह की कई मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। बाद में तो फिर मैं हैदराबाद भी रही, लाड़काना रही, फिर अभी कराची में, कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई बहरीन है। क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक एज ए इंडिविजुअल भी करनी है। आप एज ए इंडिविजुअल पूरी कायनात है अपने अंदर। हम ये क्यों सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी स्टेट की है या पेरेंट्स की? यू आर यूनिक, यू हैव योर ओन मून, योर सन, योर कॉस्मोस, एवरीथिंग। आप हैं तो सब है, आपने आंखें बंद की, एवरीथिंग इज क्लोज, शट डाउन हो गई ना। तो ये एक इंडिविजुअल को समझना होगा कि मी बीइंग ए इंडिविजुअल, हाउ
I am, nurturing myself and Yeah. contributing towards society. मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने एक बुक पढ़ी थी इत्तेफाक से, वो भी अभी चूंकि ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड की बात आई, फिर अमार की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड में जब मैं कैनबरा गई थी, हमारी ट्रेनिंग थी वहां पे भी, तो मेरी आदत है कि एयरपोर्ट से मैं एक चीज जरूर लेती हूँ, हर एयरपोर्ट से एक निशानी के तौर पे भी, वो होती है बुक। तो फिर मैं Wow. उस पर लिखती हूँ Wow. कि फला मुल्क में फला एयरपोर्ट से ये बुक ली। वहां मैंने बुक ली मिनिमलिज्म, आपने उसकी डॉक्यूमेंट्री भी अगर देखी है, वो ऑस्ट्रेलियन एक बंदे ने लिखी है और डॉक्यूमेंट्री भी है, उसमें उसने 5 चीजें बताई हैं जो पूरी बुक का जिस्ट है। अगर ये मेरा नौजवान समझ जाए, मेरी नौजवान लड़कियां समझ जाए, तो मैं समझती हूँ जिंदगी आसान हो जाएगी, मेरी भी बहुत आसान होगी आफ्टर दैट। वो क्या है? फर्स्ट इज योर हेल्थ, टॉप प्रायोरिटी, तो पूरा चैप्टर है। देन इज योर रिलेशनशिप, Yeah. थर्ड इज योर पैशन, पैशन इज थर्ड, you are healthy, well-being, Yeah. you can maintain your relationship. Relationship doesn't mean only husband and wife or mother and father Relationship and with everyone, with your own self and with everyone. Yeah. with everyone, with your office staff, your subordinates, your superiors, Yeah. even with the students. Yeah. अगर वो भी ठीक चल रहा है तो then you will excel in your passion. आपका पैशन क्या है? क्रिकेट खेलना, तो आपकी सेहत ठीक है, आपका रिलेशनशिप सबके साथ सही है, कोई टेंशन नहीं है, तो यू विल एक्सेल डेफिनेटली इन योर पैशन. योर पैशन इज मेबी ड्राइंग, योर पैशन इज प्लम्बिंग, योर पैशन इज कारपेंट्री, योर पैशन इज टीचिंग, सो यू विल एक्सेल. देन फोर्थ इज द ग्रोथ. पैशन जब आपका 100% सही चलेगा तो ग्रोथ होगी ना. Yeah, exactly. एंड द फिफ्थ वन इज कंट्रीब्यूशन. तो आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, देन यू विल कंट्रीब्यूट टू योर कंट्री. तो उसको मैं रिपीट करती हूँ, योर हेल्थ, रिलेशनशिप, पैशन, then your growth and contribution. अगर ये Health, 5 चीजें, relationship, patience, and what is the fourth one, ma'am? Health, relationship, patience, growth, growth and contribution. मैं इसको yes, यहाँ पे कर रहा हूँ because this is an amazing contribution. Without growth you can't contribute. For example, if I am growing in my particular position, then I can contribute back to society ना. Yeah, yeah. मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरा रिलेशनशिप किसी के साथ ठीक नहीं है, मैं हर किसी को हर वक्त डांटती रहती हूँ, someone is abusing me, I'm in a tension. How can I excel in my passion? How can I work best of my job? Yeah. ये चीजें भी हमें समझनी होंगी. यही being a trainer is my job to mentor my youngsters. और ये चीजें तो समझ, जो आपने अभी ये 5 चीजें बताई हैं, ये ना सिर्फ मेरे लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी यूथ यहाँ पे हमें सुन रही है उनके लिए बहुत ब्रिलियंट. आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग कंट्रीब्यूशन जो कि आपने शो के अंदर अभी की है, दैट इज हेल्थ. क्योंकि मैं आजकल काम भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी के ऊपर ही कर रहा हूँ. मेरा पिछला शो भी जो था वो पॉजिटिविटी के ऊपर ही था, तो मैं खुद भी मैं इसी में ये बड़ा बिलीव करता हूँ कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जब तक आप अपना ख्याल नहीं रख रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. देन रिलेशनशिप, पैशन, तो ये बिल्कुल दिस इज एन इंटरलिंक. बिल्कुल. मुझे ये पूरा फलसफा है, ज्यादा उसको भी सबको इस पे डिटेल में जाना होगा. इट्स जस्ट समरी. एंड द बुक इज मिनिमल. आपने क्या नाम बताया बुक का? मिनिमलिज्म. मिनिमलिज्म, ठीक है. तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो ऑब्वियसली उसको वो कर सकता है फर्दर, अगर डिटेल में इस पूरे प्रिंसिपल को पढ़ना चाहे. पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है, इसमें बीबीए है, एमबीए है, बीएसबीए है, इस तरह के काफी प्रोग्राम्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए. और 20 साल में समझता हूँ कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का भी रुझान और बहुत ज्यादा लोगों का फोकस, और फिर इंडस्ट्री में भी जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने जो है लीड किया है ओवरऑल जाकर ऑन ऑल द टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस एंड एवरीवेयर. मुझे सिर्फ ये बताएं मैम कि आप आगे क्या देखती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के बाद भी, कोरोना के बाद भी जो है दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, काम करने के भी, एजुकेशन के भी, और ना सिर्फ कोविड में, लेकिन अगले मैं समझता हूँ कि अब आगे की एजुकेशन में कुछ ऐसा सब्जेक्ट आप समझती हैं कि जो लीड करेगा लोगों को या एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में? बिल्कुल. देखिए, ये बिल्कुल सही बात आपने कही. एमबीए वाला क्रेज पाकिस्तान में रहा है सिंस 2 decades. लेकिन अगर बाकी डेवलप्ड कंट्रीज को आप देखेंगे, थोड़ा मैं आगे जाऊंगी इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए कि एमबीए की अपनी अहमियत है. देयर इज नो डाउट, बिकॉज़ देयर मस्ट बी अ पर्सन हु कैन मैनेज ऑल द ऑपरेशन, राइट? लेकिन ऑपरेशंस करता कौन है? और एमबीए
जॉब होल्डर्स का आप अगर परसेंटेज निकालें तो वो कितना है। तो ये Yeah. हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, और हमारी Yeah. पॉपुलेशन सिर्फ हायर एजुकेशन की तो नहीं है। Hmm. अभी You're right. इस इरा में जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, जो आपका पेंडेमिक या जिस तरह का अभी एनवायरनमेंट ग्लोबल इशू चल रहा है, जी. तो आपने खुद देखा होगा कि जब आप ग्रोसरी भी ऑनलाइन मंगवाते हैं या मंगवाना चाह रहे हैं, आपकी हर शॉपिंग घर बैठे हो सकती है। तो द रोल ऑफ आईटी अगेन इज रिवाइव्ड। आपको पता है कि 1 डिकेड बिफोर आईटी का बहुत बड़ा बूम था और पाकिस्तान में ग्रेजुअली ये कम हुआ। आई डोंट नो Yeah. व्हाई। Yeah. ठीक है, एमबी उससे सुपरसीड कर गया, लेकिन आईटी अभी फिर रिवाइव कर रहा है। और अब कोई ऐसी चीज नहीं, इवन जूम से लेके आपकी अभी जो आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, गूगल चैट से लेके, गूगल क्लासरूम से लेके, Yeah. आपका टीम व्यूअर से लेके, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर जो अभी हमारे ऑफिस में, मैं भी अभी जब ऑफिस में मीटिंग करती हूँ तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू करती हूँ, और मुझे Yeah. मेरे अपने का बंदा चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में जो मैं देखती हूँ, अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, टेक्निकल वोकेशनल की बात मैं नहीं कर रही हूँ, टर्शियरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने सवाल हायर एजुकेशन तक किया है। तो वो है आईटी। आईटी सॉल्यूशंस यू नो इज अ माय नीड। अभी हम जो सोच रहे हैं कि ज़ेबटेक में चलो टेक्निकल वोकेशनल में 80% इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड वर्क, क्योंकि जब तक मुझे इंजन में खोलूंगी नहीं उसको, मैं फिर असेंबल कैसे करूंगी। तो Yeah. भले मैं कितनी भी वीडियो दिखा दूं, अगर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस में नहीं करवाऊंगी लोग स्टूडेंट को नहीं तो वो सीखेंगे. नहीं। वैसे आई वाज तो एक्सपेक्टिंग द सेम आंसर बिकॉज मुझे लग रहा था बिकॉज आपकी एजुकेशन भी कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड उसमें ही है और मुझे ये आइडिया था कि यही होगा बिकॉज ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज गोइंग टूवर्ड्स डिजिटल बहुत ट्रांसफॉर्म रैपिडली. तो पिछले इसमें हो 3 गया। साल मैं आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं. आई एम लीडिंग एंड ब्रांड एक्टिवेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी सिंस लास्ट 4 years. 2019 के स्टार्ट में जाके हमने फैसला लिया कि हम साथ साथ एक डिजिटल एजेंसी भी स्टार्ट करें बिकॉज रुझान लोगों का डिजिटल पे जा रहा है. जो एडवर्टाइजिंग के बजट्स थे वो डिजिटल के ऊपर लग रहे हैं. तो दिस इज द नीड ऑफ द टाइम. दिस इज द नीड ऑफ द टाइम. माय नेक्स्ट कम क्वेश्चन से इज कम बेस्ड ऑन दैट. जी जी. कम से कम ये तो चलेगा, ये 1 साल 2 साल तो इसका बूम रहेगा। और ये कि इसके सब आपका गुजारा नहीं है। अभी हम खुद सोच रहे हैं कि जो हमारे घर बैठे लोग हमसे सीख सकते हैं ऑनलाइन, उसको हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। ज़ेबटेक जल्दी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसको लाएगा। बल्कि आप ये देखें ना कि डिजिटली इवन कोविड ने आके इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा स्टैम्प कर दिया है. इससे पहले शायद ये थोड़ी सी चीज कम थी लेकिन इसने आगे और कर दिया. मतलब मैं नहीं समझता कि हमने जिस तरह ये सेशंस हो रहे हैं इस तरह आपको पता है कि पहले कभी कोई हमने सेशन किया हो, क्योंकि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है. तो वही वाली बात है कि ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज के अगर हम देखें तो किसी प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है. तो हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पर डिजिटल चैनल जो है वो बेसिकली नजर आया है. तो मुझे बताएं मैम कि ज़ेबिस्ट के आगे क्या प्लान्स हैं. अभी आपने खैर थोड़ा सा इस पर इंट्रोडक्शन दिया भी है टू इंट्रोड्यूस डिजिटल एजुकेशन बिकॉज आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द टाइम. और आगे जाके जो है मेजॉरिटी लोग जो है वो इसी पे ही काम कर रहे होंगे. सो द व्हेन द वर्ल्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग, सो how would you actually implement digital education into Zebist curriculum या digital Zebist performer? देखिए बिलाल, ज़ेबेस्ट के अंडर 3 किस्म की चीजें चलती है ना। हायर एजुकेशन हमारे पास डिग्री अवार्डिंग हम इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास कुछ स्कूल कॉलेजेस हैं, और फिर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन है. जो डिग्री अवार्डिंग प्रोग्राम हो तो हमारे इस साल से पहले ही सारे ऑनलाइन, इन द सेंस जो एंट्री टेस्ट होती थी या उसके रिजल्ट अनाउंस होना, हमारा जेब डेस्क एक सिस्टम है जिसको अभी हम अपग्रेड कर रहे हैं, वो तो वैसे ही चलता था. अब इसको इस दफा हम जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी ऑनलाइन होंगी 100%. पहले तो फिजिकली लोग हमारे पास आते थे, वो है, वो उसका बिल्कुल डिजिटलाइजेशन हो रही है. स्कूल कॉलेजेस में कुछ गवर्नमेंट ने की हैं अनाउंसमेंट्स, कुछ हम अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं. टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन में क्योंकि हमारे पास सिर्फ हार्ड कोर कोर्सेज नहीं है, जैसे वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेशन, सोलर पैनल, इसके अलावा हमारे पास जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑल दीस थिंग्स. तो उसके लिए भी अभी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हम पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, लेकिन वो उसकी परसेंटेज कुछ ज्यादा नहीं थी, ऑडियंस कुछ ज्यादा नहीं थी, हमारी जो रीच थी वो ज्यादा नहीं थी. अब हम इसको कोशिश करेंगे कि 7 ही चैप्टर में, 7 चैप्टर्स में वो चीज 100% इंट्रोड्यूस कराएं. और दुआ तो यही है अल्लाह से कि वो सिचुएशन से हम ये निकल आए, क्योंकि फिर भी जो आपके प्रैक्टिकल, खासकर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन के होते हैं, भले सिम्युलेटर्स लगाएं आप, ऑनलाइन आप प्रैक्टिकल दिखा दें, लेकिन वो हो नहीं सकेगा. मैं एक डॉक्टर के एग्जाम्पल देती हूँ आपको. अगर एक डॉक्टर को आप
या इवन हम फर्स्ट इंटर में हमने फ्रॉग ऑपरेशन किया, अर्थवर्म का किया था, कि अगर वो मैं सिर्फ देखती ऑनलाइन तो कल को मैं नाइफ लेके वो उसी स्टाइल से कर सकती हूँ क्या? इसी तरह मेडिकल एजुकेशन, इवन इंजीनियरिंग एजुकेशन या आपकी और एजुकेशन है जिसमें प्रैक्टिकल आपको बहरहाल करना पड़ेगा। तो अभी तो 5-6 महीने मुझे नहीं पता क्या होगा, वी डोंट नो बिकॉज नो वन नोस। लेकिन जो चीजें ऑनलाइन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप बिल अपना ऑनलाइन कर सकते हैं, हम पहले ही कर चुके थे। बहुत से लोग जो आईटी से वाबस्ता थे वो तो तकरीबन अपना काम आईटी के थ्रू करते थे डिजिटल। हम बिल भी देते थे और जितनी भी चीजें हैं बाहर से मंगवाना ये वो। लेकिन अब वो लोग जो नहीं प्रेफर करते थे ऑनलाइन को, डिजिटलाइजेशन को, अब उनकी मजबूरी है। अब जैसे मैं बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ तो मैं तो कोसर मेडिकोज यहाँ कराची में मेडिसिन भी मुझे घर पे मिल जाती है, ग्रोसरी भी मुझे घर पे मिल जाती है। और मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि रमजान की ईद की शॉपिंग के लिए मैं जाऊं। तो मैं उम्मीद करती हूँ पाकिस्तानी कौम भी थोड़ा ख्याल करेगी और इस तरह। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने बिजनेस मैनेजमेंट पे मैम, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल, इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी बात की। मैं बिलीव करता हूँ, ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी बताऊं कि जब मेरे बच्चे बेसिकली स्कूल जाते हैं तो मैंने नोट किया है कि उनके स्कूल में जो है मेंटल एजुकेशन पे, माइंडफुलनेस पे, साइकोलॉजी पे बहुत बात करते हैं। हालांकि शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट लाइक 4 years old, लेकिन अभी से उसके ऊपर बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस के ऊपर। मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, साइकोलॉजी की बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ योर मेजर करिकुलम इन द कंट्री। कि वो, क्योंकि हमारी जो मिलेनियल्स हैं या जेन जी जो है, या हमारी जो यूथ है, या हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो आने वाली हमारी एक ब्रीड है कह सकते हैं यंगस्टर्स की, उनको बहुत इंपॉर्टेंस की जरूरत है अपनी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ बनाने के लिए, अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि ये करिकुलम के अंदर साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ के ऊपर सब्जेक्ट्स होने चाहिए? क्योंकि हम इस चीज को एड्रेस नहीं करते तो हमारा बच्चा सफर करता है, वो डिप्रेशन में जाता है, वो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको। आप समझ सकती हैं कि उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं जो वर्स्ट कम सिनेरियो पे जा सकती हैं चीजें। तो डू यू थिंक इस तरह का कोई सब्जेक्ट हमें एड्रेस करना चाहिए यंगस्टर्स के साथ खासतौर पे, और टीनेजर्स के साथ? 100%। इसलिए देखिए बिलाल, जब हमने पढ़ा, मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ फिर आपके असल सवाल पे आती हूँ, रिलेवेंट है तो मैं इसको थोड़ा इस तरह एक्सप्लेन करूंगी कि जब हमने मास्टर्स की कंप्यूटर साइंस में, उस वक्त कंप्यूटर साइंस नया आया था, रिस्की था, लोग समझते थे आफ्टर कंप्यूटर साइंस मास्टर्स आप करेंगी क्या, यहाँ तो इतनी जॉब्स नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर हाउसेज में नहीं है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर बन जाएंगे। और आई स्टार्टेड एज अ रिसर्च एसोसिएट एंड देन लेफ्ट। वहां पे हमने क्या पढ़ा, जो कोबोल फोर्ट्रान खत्म हो चुकी थी दुनिया से, हमने वो लैंग्वेजेस पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो हायर उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से होता था, यूजीसी शायद इस तरह, जो अभी एचईसी है। क्योंकि वो लेंदी प्रोसेस होता है, एक सब्जेक्ट चेंज होना, फिर यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस कराना उसको। भाई दुनिया अभी रैपिड चेंज हो रही है। आपकी साल में एक दफा मीटिंग हो, 5 साल में चीज अप्रूव हो, कोई वेट नहीं करेगा। यही सबब है। आप इंडिया की एजुकेशन देखें, आपका कंटेम्प्रेरी है ना एक दिन, बल्कि आपसे वो जूनियर है, आप सीनियर है, हम सीनियर है एक दिन इंडिया से। तो उनकी एजुकेशन देखें और हमारी। मैं खुद का मिसाल देती हूँ, मैंने सफर किया। मैंने क्या सफर किया, मैंने वो सब्जेक्ट्स पढ़े जो मेरे किसी काम के नहीं थे, तो मुझे पैरेलल जाना पड़ा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जाहिर आपको डिग्री लेनी है, पास करना है पेपर, और फिर साइड में कोई ना कोई आपने सेंटर ज्वाइन किया, जहाँ उस वक्त विजुअल बेसिक शुरू हो चुकी थी, उस वक्त जावा शुरू हो चुकी थी, उस वक्त ओरेकल शुरू हो चुकी थी। अच्छा, जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे सवाल ही यही किया कि आपको ओरेकल आती है, आपको विजुअल बेसिक आती है। मेरी डिग्री में तो चीजें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन आपको पता था कि इट इज अ डायनामिक टाइप ऑफ फील्ड। इफ यू आर नॉट गोइंग विद द स्पीड ऑफ डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटर, तो आप रोल हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे, आपको आपके ऊपर जो है ना एक रोलर चढ़ जाएगा। सच्ची बात तो ये। तो मैंने अपने विजडम से वो फैसला किया था और पैरेलल चीजें चढ़ाई। चलो मेरा विजडम था, मुझे अवेयरनेस थी। वही आपका सवाल है अभी कि हमारे स्टूडेंट फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैंने जूलॉजी में मास्टर्स किया, कोई मेरा स्कोप नहीं है फॉर एग्जांपल, हालांकि बहुत है। अभी आपका ये जो कोविड है उसमें अपना बायोलॉजिस्ट का क्या रोल है, बहुत रोल है। क्यों हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो वैक्सीनेशन या इसके और जो डायग्नोज करने के तरीकेकार है, कोई वेस्टर्न वर्ल्ड ही बताए, हम क्यों ना बताएं? वी आर बरील, व्हाई वी आर बरील? क्या आपकी यूनिवर्सिटीज में बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी नहीं है क्या? हजारों लाखों लोग आपने वहां के पीएचडी प्रोफेसर बैठे हैं, अभी तक कुछ नहीं आया है बहुत कम, यानी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं।
तो ये जो आप चीज कर रहे हैं स्कूल लेवल से, हाँ बिल्कुल स्कूल लेवल से स्टूडेंट को एतमाद दिया जाना चाहिए, मेंटोरशिप वहां से शुरू हो। प्राइवेट सेक्टर में तो आप बात कर सकते हैं क्योंकि दे आर taking much fees and they can afford such appointments. What about your public sector? Is already I told you in my earlier discussion, where your just salaries for the conventional staff is 89% of total budget. Then how do you expect कि वो आपको साइकोलॉजिस्ट भी रख के देंगे, बच्चे को इस तरह नर्चर करेंगे? इट्स द स्टोरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड द अफोर्डिंग पीपल. इट्स नॉट फॉर ऑल पाकिस्तान. वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर. अब उसके लिए अगर मैं किसी गांव में रहती हूँ, अभी मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं और मुझे थोड़ी अवेयरनेस से एक्सप्लोर करने का शौक है, गूगल इज देयर, तो हमें भी एक्सक्यूज नहीं बनाने चाहिए. गूगल में आपको साइकोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा, आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगी, आपको बहुत सी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको अंग्रेजी सिखा सकती हैं, आपको गेम्स बनाना सिखा सकती हैं. मतलब यू कैन नेम. वही वाली चीज है मैम कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी तो टीचर अपीयर्स. तो अगर स्टूडेंट चाहेगा तो टीचर खुद ब खुद आ जाएगा. ये होगा. और फिर हमारी जो मीडिया, अगर मीडिया बजाय के रोज हमें डिप्रेशन वाली चीजें दिखाए, तो वो भी बता दे कि भाई जो गांव गलियों में रहते हो तो ये चीजें, कभी आप मुझे बताएं इवन आपकी मीडिया में कोई ड्रामा किसी कारपेंटर को हीरो करके दिखाया गया है, किसी प्लम्बर को हीरो करके दिखाया गया? I must appreciate this. मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि हमारी मीडिया की अपब्रिंगिंग बिल्कुल भी नहीं है, एंड यू हैव एड्रेस्ड इट वेरी वेल मैम. उनको करना चाहिए ना. देखें, जो दिखता है वो बिकता है. ये सुना होगा आपने. हमारा बच्चा शुरू से जब ये देखता है अच्छा क्रिकेटर बने, देखिए क्रिकेट खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी 22 करोड़ आबादी में जो फाइनल टीम होती है वो 11 प्लेयर्स पे होती है मुश्तमिल. तो आप इसका परसेंटेज निकालें, कितनों को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. क्रिकेट फॉर द हेल्थ इज गुड थिंग, बट इट इज नॉट कैरियर फॉर एवरीवन. यस एग्जैक्टली. तो आप क्रिकेटर को तो हीरो करके दिखाते हैं, अच्छा एक्टर एक्ट्रेसेस भी कितनी बनेंगी, उसका भी मिनिमम नंबर है. तो हमें रियलिस्टिकली ये सारी चीजें दिखानी होंगी और हमें अपने हीरोज ये बनाने होंगे. जैसे अभी डॉक्टर को तो हम अप्रिशिएट करते हैं, हमने नर्स को कभी नहीं किया. हमने जो वार्ड बॉयज होते हैं, जो पैरामेडिक का स्टाफ है आपका, एग्जैक्टली, क्योंकि उसके सिवा डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकता भले इमरजेंसी हो. जब तक आपका टेक्नीशियन, आपकी नर्स, आपका पैरामेडिक स्टाफ नहीं होगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता. तो अब चूंकि इस सिचुएशन में पहली दफा नर्सों को भी वेरी फर्स्ट टाइम ओपन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, किस दिन हमने स्पेशल डे सेलिब्रेट किया है नर्सों का. इवन टीचर्स के लिए भी हम, हमारे पास जिस तरह की सेलिब्रेशन है वो आपको पता है. तो हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा और हमें अभी अपने मयार और हीरोज एंड आइडियल्स थोड़े चेंज करने पड़ेंगे. एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी जो इस मेरी बात को सपोर्ट करेगी, क्योंकि टाइम आपका कम है. मैंने एक दफा किसी से पूछा था, हमारी डिस्कशन चलती है कि तो फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी डेवलपमेंट में तो ज्यादातर सारे पढ़े लिखे लोगों का काम होगा. तो मुझे किसी ने कहा कि इफ यू लुक द अमेरिका, द ऑस्ट्रेलिया एंड द यूरोप, अगर उनका टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम ठीक ना होता तो उनके ये रोड इतने अच्छे ना होते, उनकी बिल्डिंग इतनी साफ सुथरी है, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है. क्योंकि हमारे पास ना तो प्लम्बर को कोई हम हैसियत देते हैं, ना ही हमारे पास ट्रेंड प्लम्बर्स है अनफॉर्चुनेटली. आपका कारपेंटर अच्छा नहीं है, आपका इलेक्ट्रिशियन नहीं है, आपका वो एसी रेफ्रिजरेशन ठीक नहीं है, तो हाउ कम योर इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी डेवलप्ड. इसीलिए हमारे परसों की बात है ना, कराची में एक फ्लैट गिर गया और वो नवाब शाह की एक फैमिली, आपको पता है नवाब शाह की फैमिली, इंजीनियर, फ्रेश इंजीनियर, along with the wife and son, on the spot they died. So what was the problem? The problem was the poor infrastructure. Why? Because of the lack of technical and vocational education. भाई सब यूनिवर्सिटी नहीं जाते. वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं, हर कोई यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचता, आपको पता है वहां पे. बिल्कुल 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 ऐसी ही चीज. और फिर उसको आप इज्जत दें, हैसियत दें, उसका प्रॉपर कोड बनाए, जो हमने किया है. हमने विद द हेल्प ऑफ जर्मनी गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमने इस करिकुलम को, उसके ड्रेस कोड को, एथिक्स को, सॉफ्ट स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया है इसमें. नो डाउट. लेकिन अब उस यूथ को समझना होगा कि एवरीबॉडी कैन नॉट बी अ डायरेक्टर और द ऑफिसर और द on the revolving chair. I think मैम इसको अगर थोड़ा सा कंक्लूड किया जाए और इसको सम अप किया जाए तो आई थिंक कि यूथ को अपनी पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी खुद लेनी होगी.
और किसी टाइटल का या किसी डेजिग्नेशन का वेट नहीं करना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर खुद अपने एंड पे वो स्टेप ले लें उसको, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, तो हम जल्दी जल्दी थोड़े से लोगों के भी क्वेश्चंस आए तो उनको भी ले लेंगे मैम, और मेरे भी कुछ क्वेश्चंस रहे हुए हैं। आई थिंक वो आपसे तो सीखने को इतना मिलता है कि 1 घंटा इज नॉट इनफ कि हम उसमें 1 घंटे का करें, तो हमें शायद नेक्स्ट कभी फ्यूचर में दोबारा भी एक शो प्लान करेंगे आपके साथ। बट एक क्विक क्वेश्चन, व्हाट डू यू रेट द मोस्ट, स्किल्स, एक्सपीरियंस और फॉर्मल एजुकेशन? स्किल्स होंगी नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। फर्स्ट इज स्किल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टाइपिंग है तो उसका एक्सपीरियंस हुआ ना। फॉर्मल एजुकेशन अगर वाकई है फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन, नॉट फॉर द पीस ऑफ पेपर, उसका कोई काम नहीं है अदरवाइज। अमीन हाशवानी का अगर नाम आपने सुना है, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है हाशवानी ग्रुप। एग्जैक्टली, हाशु ग्रुप। हाशु ग्रुप, तो उसमें अमीन हाशवानी इज द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ दैट मैन हु इज होल्डिंग ऑल द बिजनेस। एक दफा एक प्रोग्राम में उनसे मुलाकात थी तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, हम अब जब इंटरव्यू करते हैं, लोग हायर करते हैं, तो मैं तो ना उनकी डिग्री देखता हूँ ना उसका कोई स्किल्स एक्सपीरियंस। आपने एक चीज मिस की है इसमें ना, मैं चाहती हूँ कि उसमें वो ऐड होती है सवाल में, वो है एटीट्यूड। इंस्टीट्यूट, ऑलराइट। आपके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है, डिग्री भी है, काम करने का एटीट्यूड नहीं तो क्या करेंगे आप? छोटे से आज सुबह मैंने ऑनलाइन एक सेशन में अटेंड कर रही थी, कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज, और वो वही था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीलेंस कैसे हो। उसमें था कि एक बंदा कह रहा है, आई डोंट नो हाउ टू डू दिस जॉब, क्वाइट फाइन फॉर द एम्प्लॉयर, आई विल गिव यू ट्रेनिंग, बट इफ अ पर्सन इज सेइंग आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क, उसको आप क्या करेंगे? देयर इज अ डिफरेंस। आपका एटीट्यूड सीखने का है ही नहीं, काम करने का है ही नहीं, तो यू आर नॉट गुड फॉर मी। एग्जैक्टली। है, आप काम नहीं करना चाह रहे, आपने सीखा हुआ है, यू आर वेरी गुड ड्राइवर बट यू डू नॉट वांट टू ड्राइव, आप मेरे काम के नहीं है। आप कह रहे हैं मैं ड्राइव करना चाहता हूँ, आता नहीं है, ओके मैं सिखा दूंगी। नहीं, इफ यू वुड रेट इट तो आप नंबर 1 आई थिंक एटीट्यूड को कहेंगी, एंड देन स्किल्स। हाँ, फिर आपका स्किल आ गया, फिर एक्सपीरियंस, फिर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इसी तरह का और कोई क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, जॉब और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, क्योंकि जॉब कौन देगा? जॉब देने वाला कौन है? अगर मैं एक दुकान बिल्कुल एग्जैक्टली, रेस्टोरेंट है तो आई एम द एम्प्लॉयर ना। या ठीक है, तो इवन बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, तो अगेन छोटे से लेके बड़े तक, तो आपको जॉब को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, फर्स्ट इज योर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एंड आई थिंक जिन कंट्रीज ने मैम तरक्की की है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफ एक एग्जांपल ली जाती है, तो वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस ही अपने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने में किया आई थिंक। एंड जब उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं तो मुल्क की इकोनॉमी भी बूस्ट की है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। देखें, बिल गेट किसी का एम्प्लॉय था क्या? स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग, आपका ये फेसबुक का ओनर, उसने तो मना कर दिया ना, अपना काम शुरू किया ना। एग्जैक्टली। गूगल को देख लें, आप व्हाट्सएप को देख लें, जितने भी हैं दे वर नॉट एम्प्लॉय, दे स्टार्टेड सम सॉर्ट ऑफ वर्क एंड दे हायर एम्प्लॉइज। तो इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, मैं समझती हूँ इससे कोई कंपेरिजन नहीं है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली मैम मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो यहीं से इसी सिस्टम से लिया है, और भी हमारे स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स से लेके हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बच्चे की वो माइंडसेट ही नहीं क्रिएट कर रहे होते कि उसने जाके काम करना है। मतलब अगर मैं देखूं कि मेरे पेरेंट्स ने बचपन में कहा होगा कि यार ये अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी एजुकेशन लेगा, कहीं इसको ऑयल एंड गैस में या कहीं और जगह पे इसको किसी एफएमसीजी में जॉब मिल जाए एंड दैट्स इट। लेकिन कभी बचपन से बच्चे की ये ट्रेनिंग नहीं होती कि यार इसने आगे जाके कारोबार करना है, चाहे वो एक फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल ही लगाना है, लेकिन इसने कारोबार करना है। इस चीज की मेरे ख्याल से ब्रिंगिंग मैं समझती हूँ एक टीचर से भी, टीचर तो खैर अलग सा ही प्रोफेशन है, उसको मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहूंगी, लेकिन अदरवाइज क्लर्क असिस्टेंट उससे अच्छा एक फ्रेंच फ्राइज का जो ठेला लगाता है वो ज्यादा कमाता है, इसमें कोई शक नहीं। बात ये होती है कि देखिए, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से कंफर्ट जोन में बिठाया और सिखाया, तो मैं कंफर्ट जोन से क्यों निकलूं? हम एज ए नेशन कंफर्ट जोन से निकल नहीं, मैं उस महल में तो जाना चाहती हूँ, लेकिन अंडर द ट्री मैं बैठी हुई हूँ, बीच में थोड़ा कांटे हैं और रास्ता दुश्वार है, तो मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पहुंचना उस महल में चाहती हूँ। तो आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो उस महल में पहुंचेंगे ना। You're right. तो अपनी मतलब नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, फ्यू ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, आई थिंक, आई डोंट नो कि आपका टाइम मैंने ज्यादा ले लिया है, बट जस्ट कुछ मिनट्स और लेना चाहूंगा और फिर उसके बाद हम क्लोज करेंगे इस सेशन को। मैं ये समझता हूँ मैम कि मैं अपनी ऑब्वियसली लाइफ में, अपने करियर में भी ये चीज देखता हूँ, और मैं दूसरी यूथ के साथ भी काम किया है मुझे, आई थिंक अमंग ऑल द स्किल्स, लीडरशिप स्किल इज द इज द किंग ऑफ ऑल। कि जब अगर आपका लीडरशिप स्किल नहीं है तो आप दूसरी किसी भी स्किल में फोकस नहीं कर सकते। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लीडरशिप स्किल्स, एंड हम किस तरह से, जल्दी से अगर आप इस पे क्विक रिव्यू दे सकें कि हम लीडरशिप स्किल्स किस तरह से अपनी यूथ के अंदर डेवलप कर सकते हैं? इस पे तो अग्री करती हूँ कि बिल्कुल लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो आप किसी जगह पे एक्सेल नहीं कर सकते, और हर किसी का डोमेन होता है लेवल वाइज। अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई लीडर है, एंड आई एम सपोज टू फॉलो देम। वहां पे मेरी पोजीशन होती है एज अ फॉलोअर। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनकी मैं लीडर हूँ तो दे आर सपोज टू फॉलो मी। तो और जहां पे वो है लेवल वाइज, अगर मैं बात करूं मैनेजर्स की, फिर प्रिंसिपल्स की, फिर उनके जो और ऑफिसर्स हैं, तो एवरीबडी इज अ लीडर। इवन क्लासरूम के अंदर जब टीचर बाय डेजिग्नेशन एज अ टीचर जाता है, लेकिन वो लीड करता है अंदर, वो जाहिर वो इनकॉर्पोरेट करता है ना अपनी टीचिंग की जो एक्सपीरियंस स्किल्स टू स्टूडेंट्स। तो लीडरशिप के साथ कुछ हो नहीं सकता, और लीडर वो अच्छा लीडर होता है जो अच्छा फॉलोअर होता है। सिंपल, माय डेफिनेशन इज दिस। क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज सम पावर इवन अबव द ह्यूमन बीइंग, यू कैन से मदर नेचर, उसका कोई भी नाम दे, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, व्हाटएवर, देयर इज द अल्टीमेट लीडरशिप एंड यू हैव टू बी फॉलोअर ऑफ दैट, देन यू आर गुड लीडर, लीडर ऑफ योर लेवल। ये फिर लेयर्स बनती जाएंगी और लेवल्स बनती जाएंगी। तो फॉर मी लीडरशिप स्किल्स द मैंडेटरी, एंड और उसमें फिर ये है कि जब तक एतमाद नहीं देंगे आप, और अपना बंदा अपने आप पे एतमाद नहीं करेगा, तो वो अच्छा लीडर बन भी नहीं सकता और अच्छा काम कर नहीं सकता। यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर। थोड़ा वेंचर होना भी जरूरी है, ठीक है, कि आगे क्या होगा, इसलिए करूंगा तो क्या होगा, थोड़ा वो कहते हैं ना, हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न। तो ऑब्वियसली जब तक आप रिस्क ले, वही वाली बात आपकी मैम, कि जब तक आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे ही नहीं तो फिर किस तरह से चीजें जो है अचीव होंगी। एग्जैक्ट लीडरशिप कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती, याद रखें। कभी भी नहीं होती। आई टोटली अंडरस्टैंड। और आपको मुश्किलें आती हैं, मैं ये भी कहता हूँ कि जब आप अपनी राह पर चलते हैं तो आपको मुश्किलें जरूर आती हैं, एंड आई थिंक उसी का ही फिर बाद में आपको पे ऑफ मिलता है। कुछ क्वेश्चंस हम अपने ऑडियंस के भी लेंगे, क्योंकि ऑडियंस ने काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए। हम ऑब्वियसली सारे क्वेश्चंस को कैटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम जरूर लेंगे। एक क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है कि गाजी ने यहाँ पे लिखा है, आई थिंक ही इज वन ऑफ योर स्टूडेंट फ्रॉम वन ऑफ द ज़ेबेस्ट या ज़ेबटेक के किसी उससे होंगे आई थिंक। Could you please ask the importance of blue collars worker in the light of COVID-19 circumstances? ये बहुत मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, बिकॉज ब्लू कॉलर वर्कर्स की इंपॉर्टेंस आई थिंक इंक्रीज हुई है कोविड के बाद। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे मैम? हालांकि लोग समझते हैं कि डिक्रीज हुई, जो कि गलत है। क्यों? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट हुई नवंबर में एक घर से दूसरे घर में, एसी वेसी तो लग गया। अब जब मैंने चलाया, गर्मी आ गई मई में, तो वो तो नहीं चल रहा था क्योंकि गैस लीक हो चुकी थी। अब ये मैं ऑनलाइन में ऑर्डर तो दे सकती हूँ, क्योंकि हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम एक डेटाबेस बनाए जिसमें मैं सारे ट्रेंड वर्कर्स को एक डेटाबेस में लेके आऊं और हर कोई अपने हिसाब से उसको मंगवा दे। लेकिन फिर भी उस ब्लू कलर जॉब वाले को, जो मैं कह रही हूँ टिवेट इज अ ब्लू कलर जॉब, वो जब फिजिकली आएगा नहीं गैस लेके, जो मेरी एसी में लगेगा, स्पिरिट में लगेगा, तो इससे अंदाजा करें कि ये इंपॉर्टेंस रहेगी। जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि वेस्टर्न वर्ल्ड, कोई भी नाम दो उसमें, यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, ये तीन आपके कॉन्टिनेंट, उसमें टीवेट ने ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो अब हाई फाई बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल ब्रिजेस एंड द रोड्स, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। नो डाउट, architect was there, engineer was there, supervision was there, but the people who really worked to develop that such infrastructure, वो टीवेट का था। तो ब्लू कलर जॉब की इंपॉर्टेंस बढ़ी। आपका जनरेटर घर खराब होगा, कौन बनाएगा? ऑनलाइन ऑर्डर देंगे। अच्छा, मुझे सब्जी मंगवानी है, जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर दे रही हूँ, या तो वो मुझे सेल्स सर्विस का तो मेरे पास ट्रेड है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाते हैं। तो इसमें ब्लू कलर जॉब, हाँ, इसमें चेंज ये कर सकते हैं कि विद द प्रिकॉशंस, कि आपका मास्क एंड हैंड ग्लव्स एंड द एडवाइजरी बाय द WHO, by the health department of government of provincial maybe, or your federal government, of course, then it is the doable thing right now.
And the scope of blue collar job will not be decreased in pandemic situation, rather it will be increased, because through online you need to have thing physically. मैंने अगर टेलीफोन सेट का ऑर्डर दिया है तो कोई तो देने आएगा ना मुझे. Yeah, you're right. खराब You're हो right. तो कोई तो बनाने आएगा ना. You're right. And I think मैम कि इस पूरे डायनामिक में जो आपने बताया, इसके अंदर ज़ेबिस ज़ेप्टेक ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है लोगों की इस तरह की स्किल्स को डेवलप करने के लिए. We are trying, still long way to go. ठीक है मैम. I think I have two last questions. One is from me and one is from the audience. ये क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली रिलेटेड होंगे बेसिकली ज़ेबिस से या ज़ेप्टेक से, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन दे सकें. My question is that Kerala in India has got 100% लिटरेसी रेट, और उनकी यूनिवर्सिटीज ने वहाँ पे टाई अप करना शुरू किया है यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और वो वहाँ के लोगों को एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भेजना शुरू हो गए हैं डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोजर लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए, ताकि वहाँ से कुछ सीख के आए. क्या ज़ेबिस्ट के ऐसे प्लान्स हैं या ज़ेप्टेक के ऐसे प्लान्स हैं? आई होप कि ज़ेबिस्ट के साथ, ज़ेबिस्ट एज ऑन अ लार्जर स्केल तो खैर टाई अप्स होंगे बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ, बिकॉज दूसरी यूनिवर्सिटीज लाइक आईबीए, सीबीएम, LUMS, they are offering exchange programs. लेकिन क्या ज़ेप्टेक being इंस्टीट्यूट इस तरह के प्रोग्राम्स हैं कि हम उन्हें एक्सपोजर के लिए दूसरी मुल्कों में, अगर दूसरे मुल्कों में नहीं तो हम दूसरे शहरों में भेजें, जस्ट फॉर अ कल्चरल एक्सचेंज, समथिंग लाइक दैट, कि हम नवाबशाह के स्टूडेंट्स को कराची लेकर आएं और यहाँ के ज़ेप्टेक के एक्सपीरियंसेस कराएं? इसमें देखिए आपके दो सवाल तकरीबन हो गए हैं और मैं दोनों का ही जवाब दूंगी. जो ज़ेबिस एज अ डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है वो तो कर रहा है और बहुत पहले से कर रहा है, जिसमें लॉ डिग्री का जो हमारे पास प्रोग्राम है तो वो लंदन लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन है. एक साल या यूं समझिए कि लास्ट ईयर या एक सेमेस्टर उनको वहां पे जाके करना होता है नंबर, वो तो हम कर रहे हैं. और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उनके भी कुछ प्रोग्राम्स आते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के साथ एक्सचेंज होते हैं. वो आपको पता है एक सेमेस्टर लोग जाते हैं पढ़ने के लिए. ये तो हो गया एक एलीट क्लास का मामला, ठीक है. यही चीज आप अक्सर देखते होंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो खुद अनाउंस करती हैं फ्री ऑफ कास्ट फॉर द पुअर कंट्रीज लाइक अस. और उसमें अवेयर होते हैं. मतलब मेरे पास भी एक अलर्ट ईमेल आती है हर दफा कि फलां जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है. इवन अभी गल्फ कंट्रीज ने शुरू कर दिया है, तो ये उसमें एक अगर अवेयर हूँ तो मैं उसको अवेल कर सकती हूँ. और खास करके वो एज का भी बहुत बड़ा उसमें इशू होता है कि योर एज मस्ट नॉट बी मोर देन 26, 28, राइट. दूसरी बात, अभी आपने बात की टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन की, कि अगर हम बाहर मुल्क से नहीं तो यहाँ कहाँ, बाहर का भी है. हमने एक कोशिश की थी, वो कम्युनिटी कॉलेज एक प्रोग्राम था यूएस में, और हमने स्टूडेंट तो नहीं प्रिंसिपल लेवल का एक मतलब एफर्ट्स हमने की थी, लेकिन कुछ यूएसएड के कुछ इश्यूज हो गए तो दोबारा वो फिलहाल पेंडिंग में चला गया. बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेपटेक के थ्रू एक एमओयू साइन किया है फ्रेंच गवर्नमेंट से, फ्रांस से, जिसमें हमने 500 तकरीबन प्रिंसिपल, 2000 ट्रेनर्स और पाकिस्तान इम्पैक्ट some sort of the number of the students they will go and have exposure of their industry, कि वहाँ की इंडस्ट्री में वर्कर कैसे काम करता है. रिगार्डिंग ज़ेप्टेक एंड सिंध, तो उसमें हाँ अभी अगर ये सिचुएशन ठीक हो जाती है, हम पहले प्लान कर रहे थे लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है नहीं, तो आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन इंशाल्लाह we'll introduce के स्टूडेंट्स फ्रॉम नवाबशाह may visit घारो एंड घारो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तक ये चैलेंजेस हैं कि हमारे पास जाहिर वो हॉस्टल ज्यादा नहीं है, फिर रहने का मसला है, और इट्स इनिशियल लेवल पे हो सकता है सिर्फ बॉयज हो. एंड फॉर मी बीइंग अ फेमिनिस्ट मैं कहूंगी क्यों, व्हाई ओनली फॉर बॉयज, व्हाई नॉट फॉर फीमेल्स. मस्ट हैव सिस्टम. इसमें थोड़ा हमें सरमाया चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगी. प्लान तो है, कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे हमें कोई स्पॉन्सर मिलेगा तो विल मेक इट पॉसिबल. चले मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आई थिंक ये सेशन खत्म करने का मेरा दिल तो नहीं चाह रहा. इसका रीजन ये है कि इतनी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लोगों ने किए हैं और इतनी जबरदस्त नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है. आई थिंक तो बट ऑब्वियसली टाइम इज द कंस्ट्रेंट, तो हमने टाइम को भी मद्देनजर रखना है. आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. और कोई लास्ट मैसेज आप यंगस्टर्स को, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे पास आई थिंक पूरी ज़ेबिस्ट यूनिवर्स इस टाइम ये देख रही है शो, तो उनके लिए भी अगर कुछ आप कहना चाहें और समथिंग लाइक दैट, एक लास्ट क्लोजिंग नोट. क्योंकि कोविड-19 ने सबको जकड़ा हुआ है, बस उस हवाले से मैसेज दूंगी कि डिप्रेशन में ना जाएं.
हम जब पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, तो किसी चीज के साथ नहीं आए ना। तो अभी अगर मैं अपने आप को एवेल्यूट करती हूँ, आई हैव सम मनी, आई हैव सम क्लोथ्स, आई हैव हाउस, तो मैं डेफिसिट में नहीं हूँ। अगर कल कला को कुछ भी हो जाए तो स्टिल आई एम इन द प्रॉफिट। तो किसी को भी ये, अब देखिए, आप जब जाएंगे तो कोई आपको बहुत बड़ी सलामियां तो मिलेंगी नहीं, मैं सब कुछ लेके भी नहीं जाऊंगी, आई तो भी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी करंटली आई हैव सो मच। अगर आपके पास सिर्फ 3 वक्त के खाने के लिए भी है और छत भी है, तो आप लास्ट में थोड़ी है, तो डिप्रेशन में नहीं है। तो लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस पीस ऑफ लाइफ। ये है तो मेरी दुनिया है, पूरी कायनात है, नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हेल्थ इज अ प्रायोरिटी, देन जॉब एंड ऑल थिंग्स। जान है तो जान है, बिल्कुल सही है कि सारी चीजें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। और मैं सिर्फ क्लोजिंग ये करना चाहूंगा कि मैं हमेशा से इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव रखता हूँ और बहुत ज्यादा मैंने इस चीज से सीखा भी है कि फॉर्म इज ऑलवेज टेम्पररी बट सब्सटेंस इज वेरी परमानेंट। इंसान के अंदर जब सब्सटेंस होता है, इंसान विद कंटेंट, इंसान विद सब्सटेंस इज इम्पोर्टेंट। मैं अपनी खासतौर पे पिछले 20 साल में मैंने बहुत सारे मेंटर्स के साथ, लीडर्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ टाइम गुजारा। आई थिंक not just because you are in front of me, but as a mentor, as a teacher, as a trainer, I found you as a person with substance, with content. और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि my all prayers are with you. आपने बहुत लाइफ्स चेंज की हैं और इस मुल्क की फॉर्च्यून में बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, बहुत ज़्यादा लोगों के फ्यूचर्स में इजाफा किया है, उनको बहुत ज़्यादा चेंज किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट्स एन ऑनर, इट्स एन अटमोस्ट ऑनर कि आपने जो है आज हमें टाइम दिया और ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत ज्यादा यूथ को जो है मौका मिला कि वो आपसे सीखे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर।